Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444, 2371 7106 and 2342 1050. If you're calling us from outside Delhi, you may add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, शेयर बाजार या कारोबार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2342-1050। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं जाने माने बाजार विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines first. Domestic markets fall amid weak global cues. Sensex closes around 60,500 level. Nifty settles above 17,750 mark. Other markets in Asia and Europe decline on renewed fears about rate hikes in the US. And gold rises above 57,000 rupees per 10 grams for April contracts at MCX. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोरी के संकेतों पर घरेलू शेयर बाजार में हुई गिरावट। सेंसेक्स 60,500 के नजदीक और निफ्टी 17,750 से ऊपर हुआ बंद। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की ताजा आशंकाओं से एशिया और यूरोप के बाजारों में दिखी गिरावट और अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य बढ़कर 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 5 सत्रों से जारी तेजी का सिलसिला आज थम गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोरी के संकेतों पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 335 अंक यानी 0.6% की कमजोरी के साथ 60,507 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 89 अंक यानी 0.5% घटकर 17,765 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों में रुझान कुछ अलग था, वहां लिवाली की गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.8% लाभ में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% की तेजी आई। Snapping 5 sessions of gains, domestic equity markets fell today amid weak global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange declined 335 points or 0.6% to close at 60,507. Nifty at the National Stock Exchange lost 89 points or 0.5% to end at 17,765. But in the broader markets, the BSE Mid-Cap Index rose 0.8% and the Small Cap Index gained 0.5%. In the Sensex Pack, 23 companies posted losses while 7 witnessed gains. IndusInd Bank was the top gainer with a gain of 2.6%. Bajaj Finance rose 1.6% and Bajaj Finserv added 0.4%. ITC gained 0.8% and Nestle was up 0.2%. On the other hand, Tata Steel was the top loser with a decline of 2.2%. Infosys lost 2.1%. ICICI Bank and Tata Motors fell nearly 1% each. HDFC Bank, Wipro, Tech Mahindra and Maruti slipped 0.6% each. TCS, Airtel and Titan dipped 0.5% each.
In sectoral indices at the BSE, Telecom Index surged 3%, followed by Realty Index at 0.6%. Financial Services and Capital Goods indices rose 0.5% each. Healthcare and Consumer Durable indices added 0.3% each. On the other side, BSE Metal Index tumbled 2% and Power Sector plunged 1%. IT sector declined 0.7%. Auto Index slipped 0.4%. And the Energy Index lost 0.2%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,900 companies gained while 1,696 fell. Shares of 197 companies remained unchanged. So, Shishir, what do you see what are the factors that have led to Sensex closing around 60,500 level? A lot of fluctuation post-budget going up and down. What is it? What are some domestic factors or some international factors? Mostly international factor. And just see the irony. The job growth number in USA are very good. And when the numbers are good, the possibility of rate hike is there. So now there is a possibility that US Federal Reserve will go for more aggressive rate hike. And that aggressive rate hike is, when the rate is higher, then the investors who are in the Indian market, they will withdraw the money and go to the US. And that is one of the reasons why we have seen all-round selling in Indian market, and not just in Indian market. If you go to the other market also, especially the emerging economies, there we also saw more and more selling. So what I believe that when the US Federal Reserve will increase the rate, more and more outflow will be there. People will take out money, and of course there are certain domestic factors, and I don't have to mention the name of one particular company and name of one particular group where we are seeing more and more selling in the shares of those group. So that is the domestic factor which is causing some problem. शिशिर जी, बाजार में यदि हम आज की गतिविधि देखें तो एक और जहां कुछ कंपनियों में कुछ सेक्टर्स में अच्छी खासी लिवाली हुई, वहीं बिकवाली भी हुई। छोटी और मझोली कंपनियों में आज भी रुझान बना रहा है। छोटी और मझोली कंपनियों में लिवाली का ये सिलसिला क्या दर्शा रहा? एक वजह इसकी ये हो सकती है कि जब उसकी कीमत नीचे आ जाए तो वो आपके लिए एक आकर्षक हो जाता है। और जो बड़ी कंपनियां हैं जिनको हम लोग सेंसेक्स में देखते हैं या निफ्टी में देखते हैं या इवन बीएसई टॉप 100 या टॉप 200 में देखते हैं, उनमें जो कीमत है वो एक ऊपर स्तर पर बना हुआ है। जबकि बीते कुछ समय से हमने देखा कि मझोली और छोटी कंपनियों में बिकवाली हुई थी, जबकि बाजार में तेजी थी। तो एक आकर्षण था, एक आकर्षक कीमत बना, जिसकी वजह से उसमें हमने लिवाली देखी है। लेकिन ये लिवाली का सिलसिला लंबे समय तक बना रहेगा, ये थोड़ा सा कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई ऐसे तथ्य हैं। अगर पूरे बाजार की जो भावना है, बाजार में सेंटिमेंट्स बिगड़ा हुआ हो और चारों तरफ बिकवाली हो रही हो, तो उसमें मझोली और छोटी कंपनियां बच नहीं सकती। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि जितनी ज्यादा गिरावट बड़ी कंपनियों के शेयर में है, उससे कहीं ज्यादा गिरावट मझोली और छोटी कंपनियों में है। तो एक निवेशक के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी वो शेयर चुनते हैं वो परिस्थितियों का ध्यान में रख करके चुने और ज्यादा से ज्यादा बड़ी कंपनियों में जाएं, क्योंकि उनमें जो गिरावट होती है वो उस तरीके की नहीं होती है जो मझोली और छोटी कंपनियों में हम लोग देखते हैं। So if anyone were to invest today with the Sensex at 60,000 plus, is this the right time to invest, or one must wait for some more time? My advice would be that when you are entering into market, when the situation is too volatile, when the situation is too uncertain, the best way is to enter through the mutual fund or look for the alternative thing. Buying direct equity is not advisable at this moment, considering the uncertainty and considering the very huge volatility. Please remember that you have very limited resources and you have to put money into that. So it's better to go for alternative rather than going for equity directly. With FD, now that since we're talking about investment and post-budget, a lot of discussions are going on. With the FD interests at 7% plus in some cases, do you think that's a good option, especially for senior citizens? Because they have been complaining all along that for us, FD was the safe bet to invest in. It's really good time to invest in, put money in fixed deposit, and fixed deposit not just of bank but also of the post office small savings, where the interest rates are at a very high level. So my advice would be that this is a good time to go for deposit rather than investment in equity or investment in other instrument like
like equity-based mutual fund. At the best, they can go for the debt-based mutual fund where the opportunities are slightly better. The other option is, of course, the sovereign gold bond, which is also having very attractive option. And the third one is, of course, the post office saving schemes, where we have the bunch of 12 schemes where you can put money. And from April 1, you will have a much better opportunity small saving, because the threshold of monthly income scheme has been doubled. So that will give you another opportunity in terms of a better deposit option. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर इस बीच जुड़ चुके हैं। नए श्रोता जो हमसे जुड़ना चाहें और सवाल पूछना चाहे, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि अर्थनीति, शेयर बाजार या कारोबार से जुड़ा कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। हमसे संपर्क के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050। इस बीच कोलकाता से हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं अतनु शाह। अतनु शाह जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग जी, बताइए। इज हाउ डू वी डिफाइन पर कैपिटा एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड पर कैपिटा आउटपुट फ्रॉम इट्स आउटपुट award in Indian budget? Thank you very much. See, in the budget, the total allocation for education, if you see the total allocation for the education, it's not just depending upon the per capita thing. It's for the overall population. It's for the various scheme. Normally, when we go for the per capita, we go for in terms of GDP, where we say per capita income. Per capita expenditure also varies from state to state, because various states have, because education is mostly a state subject. So it will also depend upon that what kind of initiatives states governments are taking and how the facilities of education are there in that particular state. So it will vary from state to state. So it's better to think about overall expenditure on education rather than the per capita expenditure on the education. All right, we are joined by Rajendra, who's calling us from Faridabad. जी राजेंद्र जी, सवाल पूछें अपना। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, पिछले मंडे मैंने क्वेश्चन किया था। मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ और मैंने लोन लेने की बात कही थी, और आपने कहा था अपनी फैमिली में डिस्कस करिए। मैं आपसे राय मांगना चाह रहा था कि मुझे लोन तो मिल नहीं रहा, और वो कहते हैं कि आपकी जो एफडी हैं उन पे लोन मिल जाएगा। तो इसके लिए आप अपना विचार बताएं कि 7% तो मुझे एफडी में मिल रहा है, और वो लेंगे हमसे 8%, मतलब हमें सिर्फ 1% साल का देना पड़ेगा, और मैं उसी इनकम को किसी अपने मकान में लगाना चाहता हूँ, और उसी से मैं रेंट लूंगा, उसी से मैं ये भुगतान चुकता करूंगा। ये मेरी पूरी डिटेल है, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, जहां तक कर्ज लेने की बात है, तो कर्ज लेने के पहले आपको दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि पहली बात ये कि अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं तो उन संसाधनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो जो आपकी वास्तविक लागत है वो बढ़ जाती है। जब आप 8% किसी भी चीज के ऊपर आप ब्याज चुका रहे होते तो आपकी लागत बढ़ जाती है। अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध है जिनसे आप मकान का मरम्मत करा सकते हैं या मकान में कमरे जोड़ सकते हैं, उनको किराए पे दे सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। दूसरी बात यह है कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन लेने की बात जो आती है वो आप विशेष परिस्थितियों में लें। इस तरह के खर्चों के लिए जब आपको लोन लेने की बात हो तो आप एक सामान्य जो हाउसिंग लोन है, या अगर आप जिसे कहें कि रिफर्बिशिंग का जो आपको ऑप्शन कई बैंक देते हैं वो आप लें। लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये होगी कि अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं आप उनका इस्तेमाल करें, अपनी लागत को आप कम करने की कोशिश करें, फिक्स डिपॉजिट को बचा करके रखिए, आने वाले दिन के लिए वो काफी फायदेमंद होगा। घरेलू बाजार पर शिशिर जी हम थोड़ी सी चर्चा और जारी रखना चाहेंगे। आज दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों में अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाई है निवेशकों ने, कोई खास कारण? दूरसंचार सेक्टर है वो 3% बढ़ा है। एक जो खास कंपनी है, आपको पता होगा कि जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनमें उसमें जो है वो सरकार ने जो वायदा किया था इक्विटी का, वो उन्होंने उस डील को कंप्लीट कर दिया है। तो एक उम्मीद ये जगी है कि टेलीकॉम सेक्टर्स में जो बेहतरी है वो बनेगी। टेलीकॉम सेक्टर्स में
कंपनियों के लिए अच्छे मौके बनेंगे और जो लोग अभी इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, सेवाएं शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये मौका बन सकता है। तो यही वजह है कि चूंकि सरकार की नीति उस खास कंपनी में पूरी हो पाई है, तो एक उम्मीद जगी है कि टेलीकॉम क्षेत्र के लिए सरकार और भी कुछ नया करेगी और बाजार में जो स्थिति है वो और जो खासतौर पे मैं टेलीकॉम सेक्टर्स की बात करूं वो बेहतर होगी। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से आप दूरसंचार की जो कंपनियां हैं उनमें आपने आज तेजी देखी है। We also had a dip in the IT companies few days ago. Today again we see Infosys losing 2.1% and some auto companies also surprisingly, Tech Mahindra and Maruti slipping 0.6% each. TCS also interestingly dipping 0.5% each. Worth a discussion or just a volatility factor? See, outlay for IT services by various countries, especially in Western countries, what kind of allocation they are providing? The companies there, what kind of allocation they are providing for the IT services? Since this is the beginning of a new year, I mean, almost we have completed 1 month, and now just 11 months are there. So allocations are there, but still their discussions are going on. And one of the reason is since we are seeing some kind of slowdown in economy in various parts of the world. If you talk about the Europe, we are seeing some kind of recession. In US, you can say partial or the slight indications of recession are there. So, and in UK, there is a recession. So, all these factors are also contributing in lower allocation for the IT services. Since the companies which you have mentioned, they rely on various kind of export of services to various countries. So, if the allocation or the outlay for IT services in those countries are low, that will affect the income of these companies. That was one of the reasons why we have seen selling in these companies. Shows what a symbiotic world it is. You know, each one, how much we may say my country first, the fact is that we're all so interdependent. We are living in a global village. Absolutely. So you cannot think that impact activity in one country or event in one country will not affect me. Absolutely. That cannot happen. And that makes the G20 summit even more important. Exactly. Well, let's move on. We are now joined by N.R. Prasad calling us from Bengaluru. G. Prasad ji, yes, you may ask a question, please. Hello. Hello. Yes, Prasad ji, you may ask a question, please. This is N.R. Prasad from Bangalore. Yes, sir. Yes, sir. So my question is, in the budget there are 7 priorities announced. Okay, in these priorities, I picked 3 of these priorities: infrastructure and investment, green growth, and financial sector. Can we invest now in the equities, if not in mutual funds? The companies which are associated with these 7 priorities, these 3. That is my query. Okay. So if I understand your question correctly, that among the 3 priority sector which you mentioned about the infrastructure and green growth, and the third one is the financial services, my advice would be to go for the financial services because there the opportunities are very high. Number 2, infrastructure, because of the higher capital expenditure. So these 2 are the sectors, and the equities linked with these 2 sectors can provide you a better option. But my advice would be to go for sectoral mutual fund, those who are putting money in financial services or infrastructure, because considering the volatility in equity market, my advice would be mutual fund is a better option. दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अरविंद। अरविंद जी, स्वागत, आपका सवाल पूछिए। जी सर। जी जी, सवाल पूछिए अरविंद जी। मेरा सर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली आप जब कोई कंपनी लेता है, किसी को टेक ओवर करता है, जी जी, हाँ, तो स्टॉक स्पेसिफिक आप बोलते हैं कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो मेरा क्वेश्चन रिलायंस कैपिटल से ही था। तो स्मॉल इन्वेस्टर को इस केस में क्या करना चाहिए? चूंकि इस कार्यक्रम के नियम कहते हैं कि हम कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको एक जनरल आंसर जरूर दे सकता हूं कि जब किसी 2 कंपनी के बीच में विलय है या कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है, तो आप उसको देखिए कि उसके लिए कारोबार बढ़ने की कितनी संभावना है। अगर संभावना है और अगर आपको स्वैप रेशियो अच्छा मिल जाता है, यानी कि जब 2 कंपनियों का विलय होता है, 2 कंपनियां मिलाई जाती हैं, तो जिस एक कंपनी को किसी एक कंपनी ने खरीदा, उसके शेयर का जो स्वैप आपको मिलता है, वो यदि आपके लिए आकर्षक है, तो आप बने रहिए। लगता है आपको नहीं है तो बेच के निकल जाइए।
हमारे साथ श्रोताओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन हम पहले कुछ खबरों को रखेंगे, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले वैश्विक शेयर बाजार। एशियाई बाजारों पर ध्यान दें तो कुल मिलाकर आज बिकवाली तेज रही है। अमेरिका में उम्मीद से बेहतर रोजगार संबंधी आंकड़ों से निवेशकों के बीच ये धारणा दिखी कि केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व लंबी अवधि तक ब्याज दर में आक्रामक बढ़ोतरी का रुख बनाए रख सकता है। इसके चलते बिकवाली हुई। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 2% से अधिक लुढ़क गया। कमजोर कंपनियों की आय में कमी और अमेरिका में चीन का जासूसी बैलून पाए जाने की घटना से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका दिखी। दक्षिण कोरिया चले तो कोस्पी 1.7% घाटे में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.8% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुआ। निवेशकों की लिवाली से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.7% लाभ में रहा। यूरोपीय शेयर बाजार पर ध्यान दें तो वहां कमजोरी दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 1.6%, जर्मनी का डैक्स 1.2% और लंदन का FTSE 100 0.5% नुकसान पर चल रहा था। काफी देर से हमारे साथ धैर्य के साथ बने हुए हैं दिल्ली से CN गौर। गौर साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं काफी टाइम से मार्केट मंत्रा सुनता आ रहा हूँ, तो काफी अच्छा शो है ये। आभार आपका जी। और सर मेरा नाम CN बोध है, BOTH। अच्छा, बोध जी, क्षमा करें, यानी कुछ त्रुटियां हुई हमारी ओर से। खैर, बोध साहब सवाल पूछें। स्वागत आपका, बहुत बहुत। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरे 3 क्वेरीज थे, मतलब दीज आर जनरल क्वेरीज जी। पहला क्वेरी सर ये था मेरा कि रिसेंट टाइम में मार्केट में ऐसा मैंने अपने आप को मैं चाह रहा था ट्रेडिंग के फील्ड में लेके आना, मार्केट में स्टॉक्स में जाना, और मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारे जो IPOs निकले थे उन सब में ओवर वैल्यूएशन का इशू बार बार आया कि पहले तो स्टॉक रेट काफी हाई था पर बाद में सेल डाउन, जब वो मार्केट करेक्शन हुआ सब कुछ हुआ। तो इस चीज को लेके जब ये सेबी जैसे रेगुलेटर्स हैं या कोई है जो मार्केट में इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए जिनका काम है, तो अगर ये चीज नहीं हो पा रहा तो इसके खिलाफ भी कुछ एक्शन होता है या कुछ एक्नॉलेजमेंट होता है या एनीथिंग हैपन। सेकंड पॉइंट वाज सर कि जैसे हमारा ये है, अब आपने बोला कि कंपनी का नाम लेना नहीं चाहिए, बट इट्स अ गवर्नमेंट एंटिटी, जो ऐसा LIC की केस में हुआ था, तो उसमें भी अभी जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया, लोगों ने, बहुत लोगों ने किया, देश भर के लोगों ने, तो उसमें भी अभी बजट में आया कि LIC को फर्दर अभी उसको बाइफरकेट किया जाएगा इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उस केस में कैसा रहेगा, मतलब वेदर इट इज गुड फॉर अस और बैड फॉर इन्वेस्टर्स। और थर्ड चीज सर ये था कि आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जैसे हमारा बहुत सारा पैसा न्यू पेंशन स्कीम में जाता है जो कि मार्केट में लगता है, बट एट द एंड ऑफ माई रिटायरमेंट, एट द रिटायरमेंट एज, अगर उस टाइम पे मार्केट डाउन हो जाता है फॉर सर्टेन रीजन, देयर इज अ वर्ल्ड वाइड रिसेशन, तो इज इट पॉसिबल कि मेरा जो भी कॉर्पस है वो सब कुछ जीरो हो जाए या नेगेटिव हो जाए? राइट। देखिए, आपका जो पहला सवाल है ओवर वैल्यूएशन का, कि जो कीमतें ज्यादा दिखाई जाती, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि निवेशक को नुकसान हो जाता है जब उस शेयर के कीमत कम हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि आप अगर इस तरह की परिस्थितियों पर भी आप नियम बनाने लगे कि आप इसी तरह की रख सकते हैं, तो फिर शेयर बाजार अपने तरीके से काम नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या होता है कि अगर एक कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूएशन में गया है तो बाकी बात की कंपनियों के शेयर में खरीदने के लिए निवेशकों में उस तरीके का उत्साह नहीं रह जाता है, तो बाजार स्वतः ही अपनी एक प्रतिक्रिया देता है इस तरह की परिस्थितियों में। अब रहा सवाल कि क्या इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देखिए, कीमत पे कमी या कीमत पे बढ़ोतरी बाजार की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप अगर उसमें हर प्रक्रिया के ऊपर किसी के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करेंगे तो बाजार बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, जो कि आज के समय में उचित नहीं है। जो आपका तीसरा सवाल था, जो कि NPS को लेकर के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने जो न्यू पेंशन स्कीम की बात की कि आपका क्या जब रिटायरमेंट होंगे और बाजार में गिर जाता है। देखिए, आप याद रखिए कि जब आप NPS का में भागीदारी करने जाते हैं तो आपके सामने विकल्प दिया जाता है कि आप किसमें पैसा रखना चाहेंगे। तो उसमें जो पहला जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, जिसमें एक बड़ी रकम बॉन्ड में जाती है, सरकारी बॉन्ड में जाती है,
तो वो अगर आपकी उम्र उस बात की इजाजत दे रही हो तो आप उसमें जाएं, ना कि आप अगर ज्यादा पैसा शेयर में लगाएंगे तो शेयर बाजार में लगाने का जोखिम जो है वो हमेशा बना रहेगा। यहाँ पर सीधा सा सवाल ये है कि शेयर बाजार में जब भी कोई निवेश है तो वहां जोखिम है। आप में लोभ की प्रवृत्ति, आप में लाभ की प्रवृत्ति, जितनी अधिक उठाने की क्षमता आप रखेंगे उस हिसाब से नुकसान के जो मतलब हिचकोले हो सकते हैं उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। यही शेयर बाजार के मोटे नियम हैं। बहरहाल गाजियाबाद से हमारे साथ हैं गौरव। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछिए। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को। ये बात बिल्कुल सही है, जो रिस्क लेता है वही शैंपेन पीता है। जी। ये टैक्स सिंप्लीफिकेशन क्यों नहीं किया गया? अभी इतने सारे रेजिम टैक्स के, इनकम टैक्स के बना रखे हैं, इवन जीएसटी में इतने सारे रेजिम के हैं। ऑयल हमको इतना सस्ता मिल रहा है, तो क्या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं कि काफी कम टैक्स स्लैब कर देते जीएसटी में भी और इनकम टैक्स में भी, और एक अच्छा सिंप्लीफिकेशन होता है। या फिर आपको लगता है, मुझे कई बार लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की उनकी मिली भगत है कि हम लोग उलझे रहें और हम परेशान होते रहें। हम जो हमें पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिक्कत है सब चार्टर्ड अकाउंटेंट को जॉब देने में। ऐसा आप इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? देखिए, कर का सरलीकरण हो तो वो करदाता के लिए बहुत बेहतर होता है, चाहे वो आपके आयकर की बात हो चाहे जीएसटी की बात हो। अभी के समय में जो आपके पास आयकर का विकल्प आप देख रहे हैं, तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें आपके लिए एक मौका है कि आप तय करें कि आपके लिए कहां फायदा है। और जहां तक रहा सवाल जीएसटी का, तो जीएसटी आपको पता है कि हमारे देश में जीएसटी के स्वरूप में काफी बदलाव इसीलिए किया गया क्योंकि हमारी आबादी का जो स्वरूप है काफी अलग है दूसरे देशों के मुकाबले में। आप एक दर पर नहीं चल सकते, दो दर पे नहीं चल सकते हैं। हवाई चप्पल और मर्सिडीज कार पे एक जीएसटी की रेट नहीं हो सकती है। इसकी वजह से ये सारे हुए हैं। अब देखिए, कर का सरलीकरण होना चाहिए, इस पर कहीं कोई विवाद नहीं है और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार और इसको सरल करेगी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भूपेंद्र जी, लेकिन आपसे आग्रह कि आप कुछ पल बने रहें। पहले कुछ खबरें, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। जी। Global crude oil prices inched higher today, recovering from an 8% fall last week to more than 3-week lows, driven by expectations slower growth in major economies may limit fuel use. Brent crude oil futures rose 64 cents to $80.58 a barrel, while U.S. crude gained 37 cents to $73.76 a barrel. Last Friday, WTI and Brent slid 3% after strong U.S. jobs data raised concerns the Federal Reserve would keep raising interest rates, which in turn boosted the dollar. A stronger dollar typically reduces demand for a dollar-denominated oil from buyers paying with other currencies. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी के मूल्यों में समाचार तैयार किए जाने तक तेजी थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में अप्रैल में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य लगभग 500 रुपए बढ़त के साथ 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च में आपूर्ति वाली चांदी 100 रुपए मजबूत होकर लगभग 68,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। हमारे साथ मुंबई से काफी देर से धैर्य के साथ बने हुए हैं भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछें। जी, थैंक यू वेरी मच। माय सिंपल क्वेश्चन इज सर जी, अभी जो न्यू टैक्स रेजिम में बोला गया कि 7 लाख तक टैक्स फ्री, हाँ जी, लो लेवल में अपना कैलकुलेशन करता हूँ, उसमें मुझे स्लैब वाइज वो 25,000 दिखता है। तो न्यूज में जो सुनने में आया, आइदर एनी वर्जन, आइदर यू से द एक्सपर्ट और न्यूज़पेपर और मीडिया और एनी मीडिया, इज इट करेक्ट दैट देयर इज अ नो टैक्स फॉर 7 लाख रुपीज इनकम और 25,000 इज अ टैक्स फॉर द 7 लाख रुपीज इनकम? भूपेंद्र जी, यहां पर जो शब्द अगर मैं इनकम टैक्स की भाषा में कहूं तो वो रिबेट है। रिबेट का मतलब क्या है कि अगर आपकी आय 7 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी आय 7 लाख रुपए से ज्यादा का है तो आपका स्लैब के हिसाब से फिर शुरू हो जाएगा। पहले 3 लाख पर 0, फिर उसके बाद जो अलग अलग दरें हैं उसके हिसाब से गणना होगी। ये याद रखिए कि आपकी आय कितनी है, यानी आपकी आमदनी पर निर्भर करेगा ये। All right. Moving on with some more news, the government has planned to develop 100 airports by next year under the Regional Connectivity Scheme RCS, Ude Desh Ka Aam Nagrik Udan Infrastructure Scheme. This information was given by Minister of State for Civil Aviation General V.K. Singh in the Rajya Sabha today. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And our friends, before we wind up, here are the headlines once again. Domestic markets fall amid weak global cues. Sensex closes around 60,500 level. Nifty settles above 17,750 mark.
Other markets in Asia and Europe decline on renewed fears about rate hikes in the US, and gold rises above 57,000 rupees per 10 grams for April contracts at MCX. And that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak signing off. Namaskar. Market Mantra.